وہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے ذکر کریں گے یوریا کھاد کی قلت کا۔ جنوبی پنجاب میں یوریا کھاد کی قلت برقرار، گندم کی فصل متاثر ہونے لگی۔ کاشتکاروں کا صبر جواب دے گیا، حکومت اور انتظامیہ کے خلاف احتجاج اور نعرے بازی۔ لیا کے وکیل بھی کسانوں کے حق میں میدان میں آ گئے ہیں، مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔ بہاول نگر میں یوریا کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کسان ڈی سی آفس کے باہر سراپا احتجاج، انتظامیہ اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ وہ یوریا کھاد کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ چوبارہ کے کاشتکاروں کا بھی صبر جواب دے گیا، کھاد نہ ملنے پر احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ چوبارہ میں کھاد موجود ہے مگر بلیک میں مل رہی ہے، حکومت فصلیں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ آج صرف اور صرف یہ احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا ہے، اپنی حکومت دیکھوں، ساری اپنی حکومت کریے، سارے اپنے ایم پی این، سارے اپنے ایم ایل اے اساں ووٹ دے کے انہوں نے بھیجے، اور یاد رکھو اے بھی اعزاز دوبارہ دی عوام نو ویندے۔ لیا میں کھاد کی عدم دستیابی پر وکلاء میدان میں آ گئے۔ مظاہرین کی قیادت صدر ڈسٹرکٹ بار مہر حبیب اللہ نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وکلاء مہنگائی کے خلاف عوام کے ساتھ ہیں۔ ملتان کے کسانوں کے لیے بھی کھاد کا حصول مشکل ہو گیا، حکومتی دعوے محض جھوٹ نکلے۔ چیئرمین کسان اتحاد چودھری محمد انور کا کہنا تھا کہ یوریا کھاد بلیک میں فروخت ہو رہی ہے، انتظامیہ کے سیل پوائنٹس پر کھاد موجود نہیں۔ کسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب ڈی اے پی کی ضرورت تھی، ایک بھی بوری مارکیٹ میں ڈی اے پی کی نہیں مل رہی تھی، اور بلیک میں کوئی 9,000 دے رہا تھا، کوئی 10,000 میں دے رہا تھا۔ اب ڈی اے پی کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، گندم کاشت ہو چکی ہے، اب ڈی اے پی عام مارکیٹ میں پڑی ہے۔ کسانوں نے حکومت سے یوریا کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے کاشتکار یوریا کھاد سے محروم ہو گئے ہیں، گندم کی فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا پہلے ڈی اے پی کھاد نہیں ملی، اب تو یوریا بھی دستیاب نہیں ہے۔ گندم کی فصل پیلی پڑ رہی ہے، یہی حال رہا تو ہدف حاصل نہیں ہوگا۔ رضا ملک کی رپورٹ دیکھیں۔ ڈیرہ غازی خان میں یوریا کھاد کی قلت، کسانوں کی طویل قطاریں لگ گئیں، 2 بوریوں کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ چوری چھپے یوریا کھاد کی بوری 2400 روپے کی مل رہی ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ 1780 روپے میں شناختی کارڈ پر صرف 2 بوریاں کھاد دی جا رہی ہیں، صبح سے لائن میں لگے ہیں۔ 2400 روپے یوریا تو کڈے ونجے 9000 روپے 10000 روپے بوری چاہتی تھی ڈی اے پی دی، دانے دا ریٹ 1800 روپیہ۔ انہیں توک تے نہیں بندا ہی گال دا۔ آدھی گھڑو پانی لامڑے پانی سکنا دے غریب لوگ کو کیڑے مروں مگرو 600 روپے جھاڑی دینن، اسا کیڑے وجوں اتنا نیسیاں دے کھاد نہیں ملتی۔ کسانوں کا مزید کہنا تھا کہ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے کھاد کا حصول مشکل ہو گیا، یوریا نہ ڈالنے سے گندم کی فصل پیلی ہوتی جا رہی ہے۔ کیمرامین عبد القادر کے ہمراہ رضا ملک، ڈیرہ غازی خان۔ تونسر شریف میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا، چولہے ٹھنڈے پڑنے پر خواتین سڑکوں پر نکل آئی ہیں۔ انڈس ہائی وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ عظمت بزدار کی رپورٹ دیکھیے۔ گیس بحران سے تنگ تونسا شریف کی خواتین سڑکوں پر آ گئیں، گیس آفس کے سامنے انڈس ہائی وے روڈ پر دھرنا دیا۔ مظاہرین ممبران اسمبلی پر برس پڑی۔ خواتین کا کہنا تھا کہ ہمارے ووٹوں سے بننے والے ارکان اسمبلی ہمارے مسائل بھول گئے۔ ممبران اسمبلی بات سنتے ہیں، نہ گیس کے دفتر میں شنوائی ہے، مہنگی لکڑیاں خریدنے کی طاقت بھی نہیں، شدید سردی میں کہاں جائیں۔ گیس کا مسئلہ گیس ہونے کا نہیں، ردا پکا نہیں تھی نہ، سارا دن بال سارے بکے ہیں، ایسا لکڑیاں بھی نہیں سے گن سکتے، غریب ہیں، ایسا کیا کروں۔ گیس تو ہمیں فراہم کی جائے، لوڈ شیڈنگ کے علاوہ جو ٹائم پہ آتی ہے وہ تو ہو، وہ بھی نہیں ہوتی ہے، 5 منٹ آتی ہے جھلک دکھا کر چلی جاتی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تونسا اسد چانڈیا کی یقین دہانی پر خواتین نے احتجاج ختم کر دیا۔ متعلقہ محکمہ ان سے بھی ہم نے بات کی ہے، تو آج سے ان کا جو نیا شیڈول جاری ہوا ہے 6 سے 9 بجے تک فل پریشر کے ساتھ، اور 5 سے شام 9 بجے تک وہ بھی فل پریشر کے ساتھ۔ مین وائل بھی گیس جو ہے وہ ہوگا 5 بجے انشاءاللہ، اس کو ہم دوبارہ مانیٹر کیا جائے گا۔ یہ جو شیڈول ہے یہ ایکسین صاحب کی طرف سے اپروو ہوا ہے۔ کامیاب مذاکرات کے بعد خواتین نے انڈس ہائی وے روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بزدار، روہت، تونسا شریف۔ بڑو پنجاب کے دعوے ٹھس ہو گئے۔ نئے پاکستان میں بھی اسکولوں کی حالت نہیں بدلی۔ 1986 میں قائم ہونے والے کیروڑ پکا کے ایلیمنٹری اسکول کو ابھی تک راستہ نہیں مل سکا۔ طلبہ و طالبات کھالوں اور فصلوں سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ عاشق حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے کیروڑ پکا میں اسکول بنے 36 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک راستہ نہ بن سکا ہے۔ طلبہ و طالبات کھال اور فصلوں میں سے گزر کر اسکول جانے پر مجبور ہیں۔ بچوں نے کتابیں اٹھا کر محکمہ تعلیم کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے اسکول میں بچوں کی تعداد 500 سے کم ہو کر 306 رہ گئی ہے۔ یہ 30 سال ہو گئے اسکول کو بنے ہوئے، اب یہ ایلیمنٹری بھی ہو گیا ہے، لیکن یہاں راستے کا بہت درینہ مسئلہ ہے۔
हमने मुतद्दद बार इसी करोड़ पक्का को दरखास्त दी लेकिन हमारी कोई सुनवाई ना हुई। हम गिर जाते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, हमारे बैग फट जाते हैं, किताबें गिर जाती हैं, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमारी टीचरों को भी। स्कूल टीचर रास्ता न होने की वजह से तबादला करवा लेती हैं। तुलबा ने बताया कि खाल और फसलों में से गुजरते हुए गिरकर अक्सर जख्मी भी हो जाते हैं। फसलों से गुजरते हुए वैसे भी डर लगता है, कई बार किताबें पानी में गिर जाती हैं। बच्चों के लिए जो रास्ते का देरीना मसला है, तो कई दफ़ा जो है ना बच्चे आते आते जो है ना खाल में गिर जाते हैं, उनके कपड़े भीग जाते हैं, चोटें लग जाती हैं। लिहाजा हमारी जो है ना गुजारिश है अफसरान बाला से कि हमें जो है ना रास्ता दिलवाया जाए। शहरियों का कहना था कि इमरान खान ने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था कि अगर हुकूमत मिली तो नए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनाई जाएंगी, लेकिन अभी तक एक स्कूल का रास्ता ना बन सका है। कैमरामैन यासिर बरियार के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोई न्यूज़, कैरोड़ पका। हुकूमती नाकिस पॉलिसियां। कोट अदू में तहरीक इंसाफ का पुराना वर्कर सड़क पर आ गया। घर चलाने के लिए सब्जी और फलों की रेहड़ी लगा ली है। तैमूर अतर की रिपोर्ट देखिए। इज्जत की रोटी और मकान मुझे चाहिए मेरे कप्तान, मेरी भी थी एक दुकान, नाम रहा ना उसका निशान। ये थी तहरीक इंसाफ के वर्कर की दास्तान। वजीर-ए-आज़म इमरान खान का साथी नौकरी न मिलने पर सड़क पर आ गया। कोट अदू के रिहायशी इरफान अंसारी ने 24 साल तहरीक इंसाफ को दिए। चलता रोजगार बीवी का 5 मरले का प्लाट पार्टी की नजर हो गया। इमरान खान के वजीर-ए-आज़म बनने के चौथे साल इरफान अंसारी का सबल जवाब दे गया। सारे ख्वाब टूट गए, मायूस होकर रेड़ी लगा ली। उसका कहना था कि उसे नौकरी मिली ना ही कर्जा। वजीरों और मशीरों ने वजीर-ए-आज़म से मिलने भी नहीं दिया। जुनून ग्रुप के हमरा मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। आज मेरी शमूलियत को अरसा 23 साल गुजर चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था, गरीबों से अपना लुटेरों से लेंगे, गरीबों को देंगे। 2020 को मैंने कर्ज अप्लाई किया। आज तक मुझे कर्ज न मिल सका, ना ही किसी बैंक की तरफ से कोई रब्ता किया गया, ना ही किसी और हुकूमती नुमाइंदगान की तरफ से कोई रब्ता किया गया। इरफान अंसारी ने बताया कि वर्करों को नजरअंदाज कर दिया गया। एमपीए ने मजाक उड़ाया, अगर इसकी ना सुनी गई तो वो बीवी बच्चों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। कैमरा टीम के साथ तैमूर अतर, रोही, कोट अदू। एग्रीकल्चर क्रेडिट एडवाइजरी कमेटी की सालाना मीटिंग। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि जनूबी पंजाब के 13 अजला पूरे पंजाब का 40% हैं, लेकिन इस खित्ते को फिर भी हक नहीं मिल रहा। लिजाज की ये रिपोर्ट देखिए। एग्रीकल्चरल क्रेडिट एडवाइजरी कमेटी की सालाना मीटिंग के बाद गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकिर का कहना था कि जनूबी पंजाब के 13 अजला पूरे पंजाब का 40% हिस्सा है, लेकिन इन अजला को फाइनेंस 26% दिया जा रहा है। गुज़श्ता साल ज़राई सेक्टर में 1365 अरब रुपए की डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी एक साल में 100 अरब रुपए से ज्यादा इजाफा हुआ। तो सदर्न पंजाब के 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि 13 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये पूरे पंजाब का 40% हिस्सा हैं अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, लेकिन इनको जो बैंकों से फाइनेंस जा रहा है वो सिर्फ 26% जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि स्कोरिंग मॉडल पर बेहतरीन काम करने वाले बैंक की हौसला अफजाई की जाएगी। हर सूबे में एक चैंपियन बैंक होगा, वही लीड करेगा। हुकूमत ने मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम में सब्सिडी दी, अभी तक 100 अरब रुपए से जायद की मंजूरी हो चुकी है। हमने एक कॉन्सेप्ट आज इंट्रोड्यूस करेंगे और वो ये है कि हर सूबे में एक लीड या एक चैंपियन बैंक होएगा, और ये हर सूबे का जो और हर रीजन का जो चैंपियन बैंक आइडेंटिफाई हम करेंगे, वो इस एक्शन को स्पेयर हेड करेगा, लीड करेगा कि उस सूबे में जो फाइनेंसिंग है वो एक अच्छे अंदाज से उसमें इजाफा हो। सालाना ज़राई क्रेडिट एडवाइजरी मीटिंग में मुल्क भर से बैंकों के सदूर और नुमाइंदों ने शिरकत की। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट्स बढ़ा दिया। साबिक सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तनवीर शेख कहते हैं पॉलिसी रेट्स बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। मलिक अमजद की रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में इजाफा कर दिया। साबिक सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां तनवीर शेख का कहना था कि मार्कअप रेट का इन्हिसार पॉलिसी रेट पर मुनहसर है। इजाफे के बाद पॉलिसी रेट 9.75 हो चुका है, जिससे महंगाई का मजीद तूफान आएगा। 3 पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी जब इन्होंने दी तो मुतवातर बढ़ रहा है। पहले 100 बेसिस बढ़ा, फिर 75 बेसिस बढ़ा और अब फिर 75 बेसिस बढ़ा है, और जिस कदर ये बढ़ेगा उस तरह मार्कअप रेट कारोबार के लिए बढ़ेगा। इन्होंने मजीद कहा कि पॉलिसी रेट बढ़ने से मार्कअप रेट्स भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से अखराजात बढ़ जाएंगे। जब कॉस्ट कम होगी तो कारोबार बढ़ाया आसानी से जा सकता है,
जब भी हम कोई फिजिबिलिटी बनाते हैं, जो फिजिबिलिटी जो प्रोजेक्ट्स आजकल लग रहे हैं उनकी फिजिबिलिटीज 6 माह पहले या साल कबल बनी थी और वो उस वक्त की पॉलिसी रेट के बेसिस पर बनी थी। मियां तनवीर शेख का ये भी कहना था कि हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे ताकि कारोबार मुतासिर न हो। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। ठंड बढ़ी तो लंडा बाजारों की रौनकें भी बहाल हो गई। मियांवाली के शहरियों ने किया गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख। उनका कहना है यहाँ से मुनासिब कीमतों पर सामान मिल जाता है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली के लंडा बाजार में गहमा गहमी महंगाई के सताए शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि मार्केट और लंडा बाजार की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। मार्केट से सामान खरीदना गरीब अफराद के लिए नामुमकिन हो गया। ये से माल लब्धा सस्ता, सारी अवाम रहते पे लंडे बाजार चुते ये 100 ते 150 200 का सामान है, ये तो सस्ता मिल रहा है तो अवाम इतना नहीं है। महंगाई ज्यादा है इस वजह तो आ रहा है, 200-300 का 200 लंडे वाला चीज मिल जाती है। लंडा बाजार में लगाए गए जैकेट, कोट, चादर वगैरह के स्टॉल पर मौजूद शहरियों ने बताया कि आम मार्केट से 2000 रुपए वाली स्वेटर जर्सी लंडा बाजार में 100-150 रुपए में मिल जाती है। कोट घेंदे पाया जर्सियां इतने मुनासिब रेट ते मिल वेंदी है, बाजार 3000 दी मिलदी ते 100-150 दी मिल वेंदी है। इसमें राय बात है मजबूरी तो नहीं तो खुशी तो कौन आंदा है, मजबूरी तो हर बंदा आंदा है। दुकानदार का कहना था कि लंडा बाजार में इंतहाई सस्ते दामों पर गर्म मलबूसात दस्तयाब हैं, जिसके बायस लंडा बाजार में रश बढ़ जाता है। बाजार से काफी ज्यादा यहाँ पे रश होता है क्योंकि यहाँ पे रेट मुनासिब है। 2000-3000 वाली यहाँ पे चीजें होती है ब्रांडेड, एक तो चीजें अच्छी, दूसरा रेट हमारा जायज होता है। 100-150 की हम जर्सी दे रहे हैं 250 रुपए की, और माल भी हमारा सारा ब्रांडेड अच्छा माल होता है। बाजार से काफी अच्छा माल हम बेचते हैं, तभी लोग यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ पे अच्छी चीज मिल जाती है, पैसे भी बच जाते हैं। सर्दी में इजाफे के बायस लंडा बाजार में गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए शहरियों का रश है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रहीम मियां खान में चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर का बाजारों का दौरा, सड़कों की मरम्मत और तजावुजात के खात्मे का जायजा लिया। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी रहीम मियां खान मियां एजाज ने जामिया कादिरा रोड, अनारकली बाजार और अकब न्यू सादिक बाजार का दौरा किया और ताजरों से मुलाकात की। मियां एजाज का कहना था कि बल्दियाती अदारों की बहाली के बाद ना ही फंड्स दिए गए और ना ही ऑफिसर्स ताउन कर रहे हैं। पूरे शहर को साफ रखने के लिए सिर्फ 250 का अमला है, अपनी मददगाह के तहत सड़कों की मरम्मत करा रहे हैं। बाजारों को अगर खुला करना है तो सबसे पहले मैं समझता हूँ हमारे जो ताजर भाई हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इसमें वो अमले के साथ ताउन करें, और तजावजात जो है जो ताजर भाइयों ने अपनी दुकानों से बाहर तजावजात किए उसको ख़त्म होना चाहिए। बाकी ये जब तक दोनों तरफ से मामलात इकट्ठे नहीं चलेंगे अवाम के ताउन के साथ, तब तक मैं नहीं समझता कि हम ना सफाई हम बेहतर कर सकते हैं ना हम तजावजात पे काबू पा सकते हैं। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी ने तजावजात के खात्मे और सफाई की सूरत बेहतर बनाने के लिए ताजरों और शहरियों से ताउन की अपील कर दी। कैमरामैन अनवर सवेर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम मियां खान। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा और डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद का फोर्ट मनरो का दौरा, कैडेट कॉलेज के तामीराती काम का जायजा भी लिया। रेजिडेंट इंजीनियर पाकिस्तान एयरफोर्स तैमूर हसन ने ब्रीफिंग दी। अली मूसा नसा की रिपोर्ट देखी। खर फोर्ट मनरो में 800 केनाल पर कैडेट कॉलेज के साथ वेलफेयर सिटी भी बनेगा। पंजाब सरकार ने 1 अरब रुपए के इब्तदाई फंड्स फराहम कर दिए। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद के हमरा कैडेट कॉलेज के तरक्याती मंसूबा का जायजा लिया। जून तक पहला मरहला मुकम्मल करने का टास्क दिया गया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल KSDA मकबूल अहमद, पोलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान, मोहम्मद इकराम मलिक, डायरेक्टर डेवलपमेंट अबैदुर रशीद, SC पब्लिक हेल्थ भी मौजूद थे। इसकी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे फोर्ट मनरो कैडेट कॉलेज को लाया गया है जी। हमारी फेडरल गवर्नमेंट और वज़ीर आला पंजाब की खसूसी काविशों से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसके ऊपर की एग्री किया है। ये कैडेट कॉलेज पूरे इस इलाके के लिए बिलखसूस साथ बलूचिस्तान का एरिया लगता है, सिंध का लगता है, और ये पंजाब का जो साउथ पंजाब का इलाका है उसके लिए बड़ा आइडियल लोकेशन है। कमिश्नर DG खान का कहना था कि फोर्ट मनरो खत कैडेट कॉलेज खित्ते के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। कैडेट कॉलेज को 3 हिस्सों में तामीर किया जा रहा है। फोर्ट मनरो खत कैडेट कॉलेज में फलाही और तरक्याती मंसूबे भी शामिल हैं। रहीम मियां खान में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन की गहमा गहमी, सदारती उम्मीदवार बशारत अली हुंदल और उनके पैनल के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। बशारत अली हुंदल का कहना था कि उनका पैनल जीत के बाद सोसाइटी की खिदमत करेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
डिस्ट्रिक्ट वार रहीमिया खान में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई। सिविल सोसाइटी भी अपने उम्मीदवारों के साथ शाना बशाना इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। सदाती उम्मीदवार बशारत अली हुंदल और इनके पैनल के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। बशारत अली हुंदल का कहना था कि वो सिविल सोसाइटियों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जबरदस्त एक संगम था ये आज की महफिल सिविल सोसाइटी और वकला का, तो मैं इनका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ और इन्हें यकीन दिलाता हूँ, पूरी सिविल सोसाइटी को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा पैनल जीत के सिर्फ वकला की ही नहीं पूरी सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करेगा इंशाल्लाह। वकला की इज्जत और काले कोट का वकार वो बुलंद करना, और जहाँ तक मुझसे हो सका, जिस हद तक मुझसे हो सका, काले कोट के लिए मैं आखिरी हद तक जा सकता हूँ। तकरीब के मेजबान एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मकसूद अहमद संधू का कहना था कि वकला ने दावत में शिरकत करके इनके वकार में इजाफा किया। मैं वकला साहबान मेरे बड़े मैं बहुत पसंद करता हूँ इस पेशे को, तो इन्होंने तशरीफ ला के बड़ी मेरी इज्जत अफजाई की, और सिविल सोसाइटी के जो मेरे दोस्त हैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाल्लाह चौर साहब का और बशारत हुंदल साहब का ग्रुप इंशाल्लाह जीतेगा। तकरीब में सदर रहीमिया खान चैम्बर जवेद इरशाद, सीनियर वकला और सियासी व समाजी। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लाजमी लगाओ। मुल्तान में महकमा सेहत की टीम्स मुतहरिक हो गईं। पीर कॉलोनी मुल्तान में वैक्सीनेशन पॉइंट भी कायम कर दिया गया है। मोहलिक वायरस कोरोना से बचना है तो वैक्सीन कराना होगी। मुल्तान में महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि पीर कॉलोनी में वैक्सीनेशन पॉइंट पर तमाम किस्म की सहूलियात भी मुयसर हैं। यूसी मेडिकल ऑफिसर सैयद मोहम्मद कामरान का कहना था कि 12 साल से जायद उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीन लगवानी चाहिए। मोहलिक वायरस कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन करवाना होगी। मुल्तान में महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में पॉइंट्स कायम कर दिए गए, जबकि पीर कॉलोनी में वैक्सीनेशन पॉइंट पर तमाम सहूलियात मैसर हैं। तमाम लोग आए आकर अपने 12 साल से ऊपर तमाम अफराद की वैक्सीनेशन करवाएं, और 50 साल से ऊपर जो अफराद है उनकी पोस्टर डोज लग रही है वो भी आकर अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। यूसी मेडिकल ऑफिसर सैयद मोहम्मद कामरान का कहना था कि 12 साल से जायद उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि हेल्थ टीमें घर घर जाकर वैक्सीन लगाने से मुतल्लिक शहरियों को आगाही देती हैं, ताहम शहरी यहाँ से बासानी वैक्सीन लगवा सकते हैं। 12 साल से बड़े तमाम लोगों के लिए यहाँ अपने इलाके में मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा रहे हैं, और तमाम उनको सहूलतें यहाँ पे दी गई हैं। घर के करीब वैक्सीनेशन पॉइंट बनने से अब शहरियों को वैक्सीन लगवाने के लिए दूर सेंटर्स पर नहीं जाना पड़ता। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी ने एक और एजाज हासिल कर लिया। मुल्क की यूनिवर्सिटियों में पहली पोजीशन हासिल कर ली। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली का कहना था कि हम दुनिया की यूनिवर्सिटियों में 154वीं पोजीशन पर हैं। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। मोहलिक वायरस कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन करवाना होगी। मुल्तान में महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में पॉइंट्स कायम कर दिए गए, जबकि पीर कॉलोनी में वैक्सीनेशन पॉइंट पर तमाम सहूलियात मैसर हैं। तमाम लोग आए आकर अपने वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली का कहना था कि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का मसला है। यूनिवर्सिटी में यूएनए के मुकर्रर करदा हदाफ के मुताबिक काम कर रहे हैं। यूआई ग्रीन मैट्रिक की दर्जाबंदी माहौलियाती पायदारी, तालीमी तहकीक, मौसमियाती तब्दीली, वेस्ट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट में की गई। यूनिवर्सिटी में इमारतों का ढांचा ऐसे बनाया गया है जिससे कम से कम बिजली इस्तेमाल होती है। फिर वाटर रिसाइकलिंग पे कि वाटर कंजर्वेशन पे आप क्या प्रोग्राम कर रहे हो, और वाटर रिसाइकलिंग कैसे है, वाटर का एफिशिएंट यूज़ की अप्लाइंसेस आपके पास कौन कौन सी हैं, फिर पाइप्ड वाटर कैसे कंज्यूम हो रहा है, और परसेंटेज ऑफ एडिशनल हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजिंग फैसिलिटीज ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक को भी उन्होंने फैक्टर इन किया था। ये जो आखिरी थी कि उसमें आपने कैसे उसको एफिशिएंटली यूज़ किया वाटर को। डॉक्टर आसिफ का मजीद कहना था कि यूनिवर्सिटी में पानी की बचत और बेहतरीन इस्तेमाल के हवाले से भी इकदामात किए गए हैं। प्लांट फॉर लाइफ सोसाइटी अपना किरदार खूब निभा रही है। जलालपुर पीरवाला में कैंपस मुकम्मल तौर पर तैयार है, जहां 300 एकड़ पर गंदम काश्त की गई है। जलालपुर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 100% कवरेज हमने कर ली कि आप लोग कुछ उसमें से गए भी थे। वीट कैंपेन भी हमने की, वहाँ पे अब तकरीबन 300 एकड़ के करीब हमारे पास वीट लगी है। टारगेट हमारा ये कि जी 10,000 मन 10,000 मन से ज़्यादा हम अपनी जो पैदावार है इस साल का हमारा टारगेट है। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फकार अली, डॉक्टर शफकत सईद, डॉक्टर मुकर्रब अली और डॉक्टर वजीर भी मौजूद थे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान।
डेरा गाजी खान में क्रिसमस की तैयारियां शुरू, चर्च की सफाई सुथराई का काम भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। टीजी खान से आशिर इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान सेंट एंथोनी यूनाइटेड चर्च में क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर दी गईं। चर्च में सफाई सुथराई और लाइटिंग का काम जारी है। मसीही बिरादरी क्रिसमस की तैयारियों पर खुश है। 25 सितंबर का जो खुशी का दिन है, हम दुआ मांगते हैं कि हर भाई बहन, ये खुशी का मौका है। हर चर्च में, मुल्क में जहाँ जहाँ चर्च है, सजावटें हो रही हैं, काम कर रहे हैं, कितनी खुशी से कर रहे हैं। हमारा बहुत अच्छा दिन आ रहा है। मसीही बिरादरी का कहना था कि क्रिसमस के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। हर क्रिसमस की तरह ये भी ईद हमारी बहुत एंजॉयफुल हो। हम इस टाइम सफाइयों के हवाले से हम काम कर रहे हैं। रंग रोगन तकरीबन हमारा मुकम्मल हो गया है। लाइटिंग आज मुकम्मल कर देंगे। छोटे मोटे जो काम है खुदा करेगा हम 21-22 तक तकरीबन फारग हो जाएंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी का कहना था कि फैमिली और बच्चों के साथ क्रिसमस का खुशियों भरा त्यौहार भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। नवल यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस में ट्रैफिक आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ। सीटीओ जलील इमरान गलेज़ई ने तलबा को ट्रैफिक कानून से मुतालिक आगाही दी। यासिर मजीद की रिपोर्ट देखिए। नवल यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस में तुलबा और तालबात के लिए ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सीटीओ जलील इमरान गलेज़ई का शिरका से खिताब में कहना था कि तेज रफ्तारी और वन व्हीलिंग इंसानी जान के लिए खतरा है, जबकि हेलमेट का इस्तेमाल हादसात की रोकथाम में मावन साबित होता है। और इसी तरह मैं आप बच्चों से कहना चाहता हूँ, नौजवान जो बच्चे, आप मेल खास तौर पर बैठे हैं, आप जब बाइक चलाए हैं तो खुदारा हेलमेट यूज जरूर करें। सेमिनार में डायरेक्टर नवल कैंपस ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद रजा और असातिज़ा ने भी शिरकत की। सीटीओ का मजीद कहना था कि एम्बुलेंसेस को रास्ता देना इखलाकी इक़दार में शामिल है। ये कोई तेज रफ्तारियां, आप यकीन कर लें, ये अच्छी नहीं है, वक्ती हैं। हमारा ये ख्याल था, हमें बहुत कोई लोग देख रहे होंगे, अप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई सेंसिबल होगा वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा होगा। सीटीओ मुल्तान जलील इमरान का मजीद कहना था कि ड्राइविंग आसान काम नहीं, लेकिन कानून पर अमल दरामद करके ड्राइविंग को आसान बनाया जा सकता है। कैमरामैन अजीम सागर के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी में सजा रंगारंग स्पोर्ट्स गाला, रस्साकशी और रेस के हुए दिलचस्प मुकाबले। तलबा तालिबात ने खाया पिया, खूब इंजॉय भी किया। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के शोबा बैंकिंग एंड फाइनेंस के ज़रिए तमाम रंगारंग स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद हुआ। तलबा तालिबात खूबसूरत बगियों और गाड़ियों में खूब हल्ला गुल्ला करते स्पोर्ट्स ग्राउंड पहुंचे। नौजवानों ने ढोल की थाप पर खूब भंगड़े भी डाले। ये 3 दिन पर मुश्तमिल स्पोर्ट्स गाला है। पहले दिन गेम्स होंगी, सेकंड डे इंडोर गेम्स हैं, थर्ड डे फाइनल्स हैं, फोर्थ डे हमारा कल्चर डे है जो कि थर्सडे को होगा, फिफ्थ डे हमारे डिपार्टमेंट में मूवी डे है। और ये पूरा वीक जो है स्पोर्ट्स गाला वीक, स्पोर्ट्स वीक कहलाएगा और इंशाल्लाह हम सब इसको बहुत बच्चे स्टूडेंट्स एंजॉय करेंगे। तलबा तालिबात ने खूब मौज मस्ती की और अपनी अपनी टीम के झंडे भी लहराए। स्पोर्ट्स गाला में रस्साकशी और 100 मीटर रेस के मुकाबले भी हुए, जबकि खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे। हमारे डिपार्टमेंट IBF इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रॉपरली इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाता रहता है। यहाँ पे आपने देखा होगा पहले भी, और हमारा यहाँ पे स्पोर्ट्स का इवेंट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हुआ है। आप देखें डिफरेंट हमारे स्टूडेंट्स ने गेम्स वगैरह खेलनी है, बहुत सारी गेम्स हैं। तुलबा का कहना था कि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है, ताहम स्पोर्ट्स गाला में आकर खूब एंजॉय किया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। डीजी खान और तौंसा के पासियों के लिए खुशखबरी, कल से सजेगा मीर जाकिर आज़म रिंद खेलों का मेला। 31 दिसंबर तक वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल और दंगल के मुकाबले होंगे। डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान का कहना था कि मेगा इवेंट्स की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की हिदायत पर मीर जाकिर आज़म रिंद गेम्स 21 दिसंबर से शुरू होंगी। मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स के मुकाबले तौसा शरीफ और डेरा गाजी खान में होंगे। डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान का कहना था कि 31 दिसंबर तक होने वाली खेलों में वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल और दंगल के मुकाबले होंगे। हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ने बिलखुसूस हमारे मिनिस्टर साहब, डायरेक्टर जनरल साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब ने इस पर पर्सनली बड़ा वर्क किया है और हमने 4 प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लिया है। डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर का मजीद कहना था कि वॉलीबॉल की मैचेस जिम्नेजियम हॉल डेरा गाजी खान में होंगे। हॉकी मैच 25 दिसंबर को होगा। शूटिंग बॉल के मुकाबले तौसा शरीफ में होंगे। वॉलीबॉल का किसी दौर में डेरा गाजी खान गढ़ रहा है और यहाँ पे नेशनल टीमें रही हैं, तो कल इंशाल्लाह इसकी इनागुरेशन होगी एग्जैक्ट 12 बजे यहाँ पर, और उसमें कलरफुल
एक्टिविटीज़ भी आपको नज़र आएंगी, लोक रक्स भी नज़र आएंगे और आपको पहला इसका बाकायदा मैच भी नज़र आएगा। अताउर रहमान का ये भी कहना था कि दंगल के मुकाबले 31 दिसंबर को क्रिकेट स्टेडियम तौसा शरीफ में होंगे। मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के लिए खुशखबरी है। पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद करीब है। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद कहते हैं फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। फन और सकाफत के फरोग के लिए पंजाब सरकार का अहम इकदाम सरगोदा आर्ट्स काउंसिल के जेर एहतमाम पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद ने बताया कि टैलेंट हंट प्रोग्राम के मुकाबलों के लिए 5 कैटेगरीज रखी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक सूबा में फन और सकाफत के फरोग के लिए पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक सरगोदा डिवीज़न में पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स के ज़ेरे तमाम 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नौजवानों के लिए मुकाबला जात का एहतमाम किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने बताया कि मुकाबला जात में 16 साल से 40 साल की उम्र तक के मर्द व ख़वातीन और ख्वाजा सरा हिस्सा ले सकेंगे। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड या इंफॉर्मेशन ऑफिस से हासिल किए जा सकते हैं। ज़िला मियांवाली के रहायशी 16 से 40 साल तक उम्र के मर्द व ख़वातीन और ख्वाजा सरा इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 मुकर्रर की गई है। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद का मजीद कहना था कि फॉर्म की जांच पड़ताल के फौरी बाद मुकाबलों की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।